السلام علیکم، لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مونسون کے موسم میں جراثیم پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آلودہ پانی، کھڑے گندے پانی اور جراثیم سے بیماریوں میں اضافہ۔ شہر کے 5 بڑے سرکاری ہاسپٹلز میں ایک ہفتے میں ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے 2500 سے زائد مریض رپورٹ۔ میو ہاسپٹل میں تقریباً 800 سے زائد سروسز اور جناح میں 600 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ گنگارام اور جنرل ہاسپٹل میں بھی 500 سے زائد مریض رپورٹ۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال بتائیے۔ جی بالکل، مانسون کے موسم میں جراثیم پھیلنے کا خدشہ ہے اور شہر میں اس وقت آلودہ پانی، کھڑے گندے پانی اور جراثیم سے بھی بیماریوں میں اضافہ جاری ہے، جبکہ شہر میں اس وقت ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے مریض بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ شہر کے جو 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ 7 روز میں ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے 2500 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں میو ہاسپٹل میں تقریباً 800 سے زائد ہے، جبکہ سروسز اور جناح ہسپتال میں 600 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح گنگارام اور جنرل ہاسپٹل میں بھی تقریباً 500 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے جو طبی ماہرین ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مانسون کے موسم ہے، کیونکہ اس دوران آلودہ پانی اور خوراک کے ذریعے جراثیم پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ پانی اور خوراک کی صفائی کا خیال رکھ کر اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ ہاتھ دھونے اور صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بھی ڈائریا پھیل سکتا ہے، جبکہ باہر سے خریدی گئی ایسی خوراک جو صاف ستھری جگہ پر نہیں بنائی گئی ہو، کھانے سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے، جبکہ مانسون میں مچھر اور مکھیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں جو کہ جراثیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے ڈائریا پھیلا سکتی ہیں۔ جہاں ہمیشہ ابلا ہوا یا فلٹر شدہ پانی پیو، کھانا پکانے کے لیے بھی صاف پانی استعمال کریں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد صابن اور پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، جبکہ گھر میں پکا ہوا صاف ستھرا کھانا کھا کر اور باہر کا کھانا پرہیز کر کے اس موسم میں جو ہے ڈائریا اور ٹائیفائڈ جیسی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ کاروباری برادری اور کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ڈی سی ریٹ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ایل ڈی اے کی کمرشل فیسوں میں بھی اضافہ۔ ایم عالم روڈ پر رواں مالی سال کمرشل فیس فی کنال 4 کروڑ 71 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں کمرشل فیس فی کنال 2 کروڑ 42 لاکھ روپے تک ہو گئی۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے اس بارے۔ برادری اور کمرشل سرگرمیاں کرنے والے املاک کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ایل ڈی اے کی مستقل کمرشل فیسوں کی مد میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی ریٹ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کمرشل فیس میں بھی اضافہ ہوا۔ کمرشل فیس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی املاک کمرشل کروانے کے لیے ایل ڈی اے سے رجوع کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس دفعہ بھی جب پنجاب حکومت کی طرف سے بجٹ پیش کیا گیا اور نیا ڈی سی ریٹ جاری کیا گیا تو کاروباری افراد کے لیے فیسوں میں مزید اور جو غیر معمولی اضافہ ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جو اعداد و شمار لاہور نیوز سامنے لے کے آیا ہے اس کے مطابق ایم عالم روڈ پر گزشتہ برس ایل ڈی اے کی کمرشل فیس فی کنال 4 کروڑ 47 لاکھ روپے تھی، تاہم ایم عالم روڈ پر رواں مالی سال میں ایل ڈی اے کی کمرشل فیس فی کنال 4 کروڑ 71 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح گلبرگ مین بلیوارڈ پر گزشتہ برس کمرشل فیس فی کنال 4 کروڑ 60 لاکھ روپے تھی۔ ڈی سی ریٹ میں اضافے کے بعد گلبرگ مین بلیوارڈ پر کمرشل فیس فی کنال 5 کروڑ 1 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں بھی کمرشل فیسوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں گزشتہ برس کمرشل فیس فی کنال 2 کروڑ 32 لاکھ تھی اور اب مالی سال 2025-26 میں جو کمرشل فیس ہے وہ فی کنال 2 کروڑ 42 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ گارڈن ٹاؤن مین بلیوارڈ پر گزشتہ برس کمرشل فیس ایل ڈی اے کی فی کنال 1 کروڑ 91 لاکھ 80 ہزار روپے تھی، جو اب بڑھ کر اس مالی سال میں فی کنال 2 کروڑ 13 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح جوہر ٹاؤن کی صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو جوہر ٹاؤن مین بلیوارڈ پر گزشتہ مالی سال میں کمرشل فیس فی کنال 1 کروڑ 62 لاکھ روپے تھی، جو اب بڑھ کر فی کنال 1 کروڑ 75 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو رواں مالی سال میں جب ڈی سی ریٹ میں اضافہ کیا گیا تو اس کے بعد یہ کمرشل فیسوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے کو ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔ مشتعل جلسے جلوسوں اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی رائٹ مینجمنٹ پولیس کو مزید مستحکم بنانے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رائٹ مینجمنٹ پولیس کے لیے 2000 مزید بھرتیاں کی جائیں گی۔ ڈی آئی جی رائٹ مینجمنٹ فورس اسد سرفراز کے مطابق 5000 نئی شیلڈز، ہیلمٹس، پروٹیکٹیو کٹ سمیت دیگر سامان کی خریداری کا آغاز کیا گیا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے۔ بالکل،
जून को जो है वो कंट्रोल करने के लिए राइट मैनेजमेंट पुलिस को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला किया गया। लाहौर से पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 2000 मजीद भर्तियाँ जो है वो की जाएंगी। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 5000 नई सीट्स, हेलमेट्स, किट्स समेत दीगर सामान की खरीदारी का आगाज कर दिया गया है। 2000 भर्तियों में असम्बली आई की मंजूरी के बाद दी गई है। मुदस्सिर हमारे साथ रहिएगा। राइट मैनेजमेंट पुलिस को मज़ीद मुस्तहकम करने का फ़ैसला कर लिया गया है। मुश्किल जलसे जुलूस और हजूम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई राइट मैनेजमेंट पुलिस को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का फ़ैसला है। लाहौर समेत पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 2000 मज़ीद भर्तियाँ की जाएंगी। डीआईजी राइट मैनेजमेंट फोर्स असद सरफराज के मुताबिक 5000 नई शील्ड, हेलमेट, प्रोटेक्टिव किट समेत दीगर सामान की खरीदारी का आगाज़ किया गया। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश। IPP के रुकन शुएब सदीकी ने करारदाद पेश की। मतन में कहा कि अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जुराइम में मुलव्विस किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुलव्विस तमाम किरदारों को मंजर-ए-आम पर लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमजा। हमजा अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। मुलव्विस तमाम किरदारों को मंजर-ए-आम पर लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। करारदाद में ये कहा गया है, आपको बता रहे हैं कि बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश की गई है। IPP के रुकन शुएब सदीकी ने करारदाद पेश की है। मतन में कहा गया कि अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जुराइम में मुलव्विस किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुलव्विस तमाम किरदारों को मंजर-ए-आम पर लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। IPP के रुकन की जानिब से यह करारदाद पेश की गई है। पंजाब असम्बली में बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की गई है। IPP के रुकन शुएब सदीकी ने करारदाद पेश की। मतन में कहा कि अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जुराइम में मुलव्विस किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुलव्विस तमाम किरदारों को मंजर-ए-आम पर लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम किरदारों को मंजर-ए-आम पर लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। करारदाद में ये मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई है। IPP का रुकन शुएब सदीकी ने करारदाद पेश की है। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के MPA शुएब सदीकी ने कानून के लिए करारदाद जमा करवाई, जबकि बलोचिस्तान में फरसोदा रस्म और रवायात को और गैरत के नाम पर सरेआम गोलियां चलाई गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या ने हर ज़ी शऊर शहरी को जोड़ कर रख दिया है। जबकि करारदाद के बारे में अगर मज़ीद बताऊँ तो अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जुराइम में मुलव्विस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जबकि मतलब मज़ीद लिखा गया कि ऐसे वाक़यात कबायली रस्म और रिवाज की बस्ती और ज़माना जाहिलियत के अक्कासी करते हैं। ये ऐवान पाकिस्तान भर में होने वाले ऐसे तमाम वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। जबकि करारदाद में मज़ीद लिखा गया था कि मुलव्विस तमाम किरदारों को मंजर-ए-आम पर लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। गैरत के नाम पर कार्रवाई और दीगर उसूल के खिलाफ सख्त सजाओं पर मबनी कानून साजी का मुतालबा किया गया है। जबकि करारदाद में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ऐसे वाक़यात की रोकथाम का भी मुतालबा किया गया है। जी, आपका शुक्रिया हमजा। यहाँ वक्त हुआ है दुकानदारों को हुकूमत के तय करदा रेट पर चीनी की तलाश। शुगर ब्रोकर्स ने चीनी की सप्लाई ही मुअत्तल कर दी। मार्केट में चीनी की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। परेशान हाल दुकानदारों के खिलाफ ही क्रैकडाउन जारी। करियाना मर्चेंटाइल एसोसिएशन का कहना है कि शुगर माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके रेट्स मुतासर कर रहा है। हुकूमत शुगर मिल से 165 रुपये किलो के रेट पर फराहमी मुमकिन बनाए 165 किलो के रेट पर फराहमी मुमकिन बनाए। चीनी तो वो दे ही नहीं रहे, अपने फ्रंट मैन को भी दे रहे, ब्रोकर को भी नहीं दे रहे, वो होलसेलर को भी दे रहे। अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि हम चीनी दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई लिस्टें दें कौन से किन डीलर को आप दे रहे हैं चीनी। तो ये सारी फेक चीज़ें हैं मिल वालों की। ये ताकतवर लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो क्रैकडाउन ऑर्डर आ गया जी पंजाब और तमाम सूबों के जी क्रैकडाउन नीचे से गिरफ्तार कर दो जी, परचून वाले को पकड़ लो। भाई कैसे पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या चीनी 165 रुपये एक्स मिल रेट इशू हुआ है? अगर जब चीनी 65 रुपये इशू होगा मिल वालों की तरफ से डिलीवरी हमें मिलेगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी की फरोख्त का मामला अगर देखा जाए तो इस वक्त परचून बाजारों में चीनी की फरोख्त जो है
वो बुरी तरह मुतासर हुई है। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो होल सेल चीनी की कीमत है 50 किलो का थैला जो है 8,800 रुपए यानी कि 8800 रुपए का जो है फरोख्त किया जा रहा है दुकानदारों को, जो कि होल सेल कीमत अगर चीनी की फी किलो पर बात की जाए तो 176 रुपए के हिसाब से होल सेल मार्केट में चीनी जो है फरोख्त की जा रही है। और यही वजह है कि अब करियाना दुकानदारों की जानिब से चीनी की फरोख्त जो है वो रोक दी गई है और शहरियों को चीनी की फरोख्त नहीं की जा रही। और इस हवाले से जो करियाना दुकानदार है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो क्रैक डाउन किया जा रहा है वो करियाना दुकानों पर या परचून दुकानों पर किया जा रहा है, जबकि होल सेल कीमतों पर जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अगर हुकूमत चीनी 165 रुपए फी किलो के हिसाब से एक्स मिल कीमत के हिसाब से अगर दुकानों को फराहम करे तो 173 रुपए फी किलो चीनी जो है वो शहरियों को फरोख्त करना मुमकिन है। लेकिन अगर कीमत 176 रुपए होल सेल ही हो तो उस पर 173 रुपए की चीनी जो है वो शहरियों को फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। 3 रुपए फी किलो तक का जो है वो खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी वजह से अब दुकानदारों की जानिब से चीनी की फरोख्त जो है वो इंतहाई महदूद कर दी गई है और जो इंतजामिया उसकी जानिब से चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में करियाना दुकानों को चेक किया जा रहा है। और इसी पर अब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि तमाम क्रैकडाउन और तमाम मलबा जो है वो दुकानदारों पर नाजिल किया जाता है, लेकिन जो डीलर या चीनी के ब्रोकर्स हैं उनको कीमत जो है वो उनके लिए यकीनी नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से परचून दुकानों पर चीनी की फरोख्त जो है मुमकिन नहीं रही। आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। सियासी मंजरनामे की बात करें तो अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का मामला है। मुज़ाकरात के बाद हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को बहाल करवाने के लिए सर जोड़ लिया। अपोजिशन की मुअत्तली से अवाम की नुमाइंदगी का नुकसान हो रहा है। हुकूमती मौक़िफ़ ज़राए के मुताबिक कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इक़बाल चन्नड़ आज 26 अरकान को बहाल करेंगे। अपोजिशन अरकान को बहाल करने की गुजारिश हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दी है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमती अरकान की जानिब से ये रिक्वेजिशन स्पीकर को दी गई है। अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का ये मामला है। मुज़ाकरात के बाद हुकूमती अरकान की जानिब से ये तय कर दिया गया है कि आज 26 अरकान को बहाल कर दिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। जी बिल्कुल उसामा, देखें सियासी मंजर पर हुकूमत पंजाब और हुकूमती अरकान असम्बली का ये बड़ा कदम है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के 26 अरकान के मुअत्तली के मामले पर मुज़ाकरात के बाद हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को बहाल कराने के लिए सर जोड़ लिए हैं, जबकि हुकूमती ज़राए का कहना है कि अपोजिशन की मुअत्तली से अवाम की नुमाइंदगी का नुकसान हो रहा है। ये हुकूमती मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि हुकूमती ज़राए का कहना है कि आज कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इक़बाल चन्नड़ 26 अरकान को बहाल कर देंगे, जबकि ज़राए का कहना है कि अपोजिशन अरकान को बहाल करने की गुजारिश हुकूमती अरकान ने स्पीकर को कर दी है। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज हुकूमत पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुअत्तली के मामले को ऐवान में उठाएगी, जिसके बाद कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इक़बाल चन्नड़ बाकायदा जो है वो 26 अरकान को बहाल करेंगे। जबकि हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कायम हुकूमती अरकान जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि मुअत्तल अरकान की वजह से जो अवामी नुमाइंदगी है उसको नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए क्योंकि मुज़ाकरात अब कामयाब हो चुके हैं तो इनको जो है वो बहाल किया जाए ताकि जो अवामी नुमाइंदगी है वो दोबारा से बहाल हो सके। जबकि अगर मैं आपको बताते चलूँ तो इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इक़बाल चन्नड़ को जो है वो दरख्वास्त पहुंच चुकी है और इसके ऊपर अमल करने के लिए बाकायदा ऐवान में जो है वो नोटिफिकेशन भी जाहिर किया जाएगा, जिसमें 26 अरकान को जो है वो बहाल किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। गुजरपुरा के एक पार्क में बारिशी पानी ताहाल जमा है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ताफुन फैलने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। मुतल्लिका ऑफिसर से मसला फौरी हल करवाने की अपील। जैन अली से मजीद जानते हैं, बताइए जैन। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद जहां पर अहम शाहराएं जो ज़ेर-ए-आब आई थी उनको तो क्लियर करवा लिया गया है। जैसे ही बारिश खत्म होती है तमाम जो मेन पॉइंट्स अहम सड़कें उन्हें तो क्लियर करवा लिया जाता है, लेकिन जो कुछ पसमानदा इलाके ऐसे रह जाते हैं जहां पर कई कई दिन तक पानी जो है वो जमा रहता है। इस वक्त मौजूद हूं मैं लाहौर के इलाके गुजरपुरा में, जहां पर जो B1 पार्क है, गुजरपुरा की B1 पार्क की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है।
पानी जो है वो पिछले और इस पानी के बायस खड़े होने के बायस मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो यहाँ से जन्म ले रही हैं। ताफुन जो है वो फैल रहा है, गंदगी के यहाँ पर ढेर हैं, कोई भी सफाई का निज़ाम यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आ रहा। इर्द गिर्द पार्क के अतराफ में कई घर मौजूद हैं जो इस पानी के बायस, इस गंदे पानी के बायस और इस गंदगी के बायस जो है वो परेशान है। और क्या कहना है इलाका मकीनों का, वही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा। यहाँ पर पानी ऐसे ही खड़ा रहता है, महीना महीना खड़ा रहता है। जब बारिशें होती हैं मानसून की, अंदाजा ये पानी महीना महीना यहाँ ही खड़ा रहता है और हर तरह की बीमारी फैल रही है। मच्छर और डेंगू, डड्डू, हर चीज यहाँ से बाहर निकलती है। बहुत बुरे हालात है यहाँ के। आज फिर इलाका मकीन तो शिकायतें कर रहे हैं। सर आप बताइएगा मुझे, कब से पानी इसी तरीके से यहाँ पर फैलता है? कोई शिकायत वगैरह करवाते हैं, कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं? सर इसकी शिकायत वगैरह भी करवाई जाती है, इसका एक्शन कोई भी नहीं लिया जाता। तकरीबन मुझे 6-7 साल हो गए हैं, मैं 6-7 साल से हर मानसून की बारिशों में यही हाल देखता हूँ अपने इलाके में। यहाँ तक कि पानी खड़ा होने के बावजूद इनकी गवर्नमेंट की डेंगू की टीम भी आती है, वो घरों में जुर्माने करती है। उनको घरों में डेंगू नजर आते हैं, ये बाहर नहीं नजर आते। हमारे बच्चे रोज बीमार होते हैं। ये आप कचरा देख लें, बदबू देख लें, आप अंदर तक इसकी स्मेल जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि डेंगू की टीमें यहाँ पर आकर घरों में तो जो है वो फाइन करती है, लेकिन इस घरों के सामने जो पार्क के अंदर पानी खड़ा हुआ है, गंदा पानी, जिसके बायस जो बड़ी वजह बन रहा है डेंगू के अफजाइश की, उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा शिकायतें दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन ये पानी जो है वो खुद अपने धूप के बायस कुदरती तौर पर खुश्क होगा तो होगा, लेकिन कभी इंतजामिया ने आज तक इसे आकर खुद साफ नहीं किया जाए। आपका शुक्रिया। चेयरमैन वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमद, वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर और सीनियर फैकल्टी से मुलाकात की, कारकर्दगी का जायजा लिया। बाबर अलाउद्दीन ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया है। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं, बताइए बिलाल। बिल्कुल, चेयरमैन वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमद, वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर और सीनियर फैकल्टी से मुलाकात भी की। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, इनकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि नर्सिंग कॉलेज के सेंट्रलाइज दाखिला UHS के जरिए करवाने का हुकूमती फैसला दानिशमंदाना है, जबकि यूनिवर्सिटियों की गैर मुल्की रैंकिंग बेहतर करने के लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं। मुल्की रेगुलेटर्स से UHS का किरदार बड़ा नुमाया है, जबकि चेयरमैन वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम ने MD कैट के हवाले से भी सवालात किए। जबकि ब्रिगेडियर बाबर का कहना था कि ज़ाती तौर पर MD कैट का मनसूबा मजबूत हामी हूँ, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मेयार के हवाले से शिकायत सामने आती रहती हैं। निजी कॉलेज की मॉनिटरिंग का ये मजबूत निज़ाम वाज़ह करना होगा। UHS के चैलेंजेस और इसका इम्पैक्ट बाकी इदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत अहम है, क्योंकि पिछले एक साल में अस्पतालों के 100 से ज़्यादा दौरे किए, हर जगह नर्सों की कमी देखी। मियारी नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से UHS का किरदार काबिल तारीफ है। गैर मियारी नर्सिंग कॉलेजों के गिर्द गहरा तंग कर दिया गया है। इस हवाले से VC UHS का कहना था कि आइंदा ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को तस्लीम नहीं करेंगे जिसका अपना 200 बेड का अस्पताल ना हो। यूनिवर्सिटी का प्यारी बेटी प्रोजेक्ट बच्चों की तरबियत के हवाले से काबिल सताइश प्रोग्राम है। ब्रिगेडियर बाबर का इस मौके पर कहना था कि इस प्रोग्राम को प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा होना चाहिए। सेहत का शोबा वज़ीर-ए-आला के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। पंजाब के बुनियादी और देही हेल्थ मराकज को मुकम्मल तौर पर असर नो रास्ता करके आउटसोर्स कर रहे हैं, जबकि पंजाब की सेहत सहूलियात पर दूसरे सूबों के मरीजों का भी बोझ है, फिर भी डिलीवर कर रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद का सज़ा का हुक्म सुना दिया गया है, जबकि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक दर्ज मुकदमे का फैसला आज सुना दिया है। अदालत ने मुख्तसर फैसले में 9 मई को मियांवाली में हंगामा राई और तोड़ फोड़ करने के मुकदमे में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया है। और इस हवाले से अदालत ने दीगर मुल्ज़मान से मुतल्लिक भी जो सजा है वो भी उस हवाले से फैसला जारी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत के जज ने इसके साथ साथ जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनसे मुतल्लिक भी सजाओं से मुतल्लिक भी फैसला सुना दिया है।
तो ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया है। जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त वो कमरा अदालत में मौजूद थे। ताहम जो पीटीआई के लायर्स विंग है उनकी जानिब से यह कहा गया है कि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जैसे ही उनको तहरीरी फैसला मौसूल होगा तो वो लाहौर हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर करेंगे। जी, आपका शुक्रिया इशफाक। ड्राइवरी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का नश्तर टाउन का दौरा, डेंगू सर्विलेंस की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को डेंगू एसओपीज़ पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंडोर और आउटडोर मकामात की मुसलसल कड़ी निगरानी की जाए। इंडोर और आउटडोर मकामात की कड़ी निगरानी की जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का नश्तर टाउन का दौरा, डेंगू सर्विलेंस की इन बारिशों में मच्छरों की बहुतात हो जाती है और इस हवाले से डेंगू फैलने का ख़दशा पैदा हो जाता है और डीसी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जा रहा है और खड़े पानी के हवाले से अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि पानी को खड़ा न किया जाए और इस हवाले से पानी को तल्फ किया जाए। सीईओ हेल्थ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को डेंगू एसओपीज़ पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग भी दी गई है। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सूरत में पंजाब का मुस्तकबिल महफूज नज़र आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि DGCNF ने कम अरसे में बेहतरीन फोर्स कायम करके दिखाई। फोर्स की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि मनशियात का जल्द खात्मा होगा। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिन्हें मनशियात से बचाना है। आबादी तब ही मुल्क की ताकत बनती है जब मनशियात से दूर होकर तालीम और सेहत पर तवज्जो दे। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है और उसमें से 65% हमारी यूथ है। पंजाब के शहरों से, पंजाब के डिवीजन से, पंजाब की गलियों से, पंजाब के मोहल्लों से इस कौम की रगों में जो जहर भरने की कोशिश की जा रही है, आप वो जहर निकालोगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कलील मुद्दत में मजबूत इंसदाद मनशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। आबादी के बड़े हिस्से को तालीम और सेहत की सहूलियात मुयस्सर आने से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर आला का हल्फ उठाया तो वालिदैन की दरख्वास्तें आई कि हमारे बच्चों को मनशियात से बचाया जाए। चंद हफ्ते की मेहनत और लगन के साथ इतने कम अरसे में इतनी बड़ी काउंटर नारकोटिक फोर्स जो है वो खड़ी कर दी है। मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब पुलिस में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चंद हफ्तों में जराइम पर कंट्रोल कर लिया है। CCD की बदौलत पंजाब में क्राइम की शरह नीचे जा रही है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल की मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान गैरत के नाम पर एक निहत्ती खातून के कत्ल की शदीद मजम्मत करता है। ये ऐवान जरिया की आड़ में कत्ल किए गए अफराद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी करता है। ये ऐवान ऐसे वाक़यात को पाकिस्तान की आलमी साख के लिए नुकसानदेह समझता है। ये ऐवान मुतालिबा करता है कि गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ मौसर कानून साजी की जाए। पंजाब हुकूमत का किसानों को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला, मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म किया जाए। लाइफ स्टॉक की आमदनी को टैक्स के दायरे से खारिज करने की तजवीज़। पंजाब ज़री आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश किया गया। पंजाब हुकूमत का मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। लाइफ स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब ज़री आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। बिल रवा इजलास जुम्मे के रोज पेश हुआ। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। एक्ट में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के शिक D और E मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। शिक D और E मवेशियों से होने वाली आमदनी से मुतालिक है। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह तक ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। बिल को ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर कराया जाएगा। तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे।